ٹھیک ہے، مورو میرج پوڈ کاسٹ کی قسط 22 اور ہم آج آپ سے بات کرنے کے لیے پرجوش ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں نہیں وقت گزاریں گے۔ یہ آپ میں سے کچھ کے لیے سننے کے لیے تھوڑا مشکل ہونے جا رہا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سمجھنا ضروری ہے، تو چلو اس میں داخل ہوتے ہیں۔ لوگ بچوں کے لیے ایک ساتھ کیوں رہتے ہیں، اور یہ وہ نہیں ہے جو آپ سوچتے ہیں۔ مرد اپنے گھر میں قیادت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں کاس ہوں اور میں کیتھرین ہوں۔ سیکس کو واپس حاصل کرنے کے لیے اتنے واضح طریقے نہیں ہیں۔ تو جب اپنے شروع میں اپنے شوہر کو ڈیٹ کیا تو کیا آپ نے کبھی اپنے بالوں کو پاگل کر کے دروازے کا جواب دیا ہم مورو شادی کر رہے ہیں؟ آئیے طلاق کے اعداد و شمار کو نئی شادی کے ساتھ پلٹتے ہیں۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے اور میں آپ کو پہلے ایک کہانی کا تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ لہٰذا اب کے پاس کچھ لوگ تھے، خاص طور پر ایک شخص جس کے ساتھ میں نے کام کیا تھا، اور ہم ظاہر ہے کہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کون ہے، لیکن وہ اس پروگرام میں شامل ہوا۔ انہوں نے پروگرام میں بہت اچھا کام، اس نے اپنے ساتھ زبردست نتائج دیکھے۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی شادی ظاہر ہے اور چیزیں ناقابل یقین حد تک اچھی چل رہی تھیں، اور اس نے وہی کیا جو بہت سارے مرد کرتے ہیں، اور اتفاق سے ہم اس حیرت انگیز جوڑے سے ملنے کے قابل تھے، اور جب ہمیں ایسا کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ارے بیبی، اور اب اگر آپ نہیں جانتے کہ ہمارے پروگرام ایک دوسرے سے آزادانہ طور پر چلتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ میرے پروگرام میں صرف ایک مرد ہو سکتا ہے، صرف کیتھرین کے پروگرام میں ایک خاتون ہونا، اگر ہم دونوں کو بورڈ میں شامل کیا جائے تو یہ شاندار ہے، لیکن اگر آپ ہمارے کام کو جانتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ایک پش پل ہے، اور اکثر دونوں شراکت داروں کو رکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ایک اندر ہے اور یہ دھکا ہے، اور ایک کھینچ رہا ہے، اور یہی وہ ہے جو باہر ہے۔ اور اس طرح ہماری ملاقات بیوی سے ہوئی جو پریشان تھی، ناراض۔ وہ غصے میں تھا۔ جی ہاں، وہ غصے میں تھا، میرا مطلب ہے یہ پسند کرنے کے لیے تھا۔ ارے مجھے واقعی آپ کے لڑکے کے بال کاٹنا پسند ہے۔ آپ انہیں کہاں لے جاتے ہیں؟ کیونکہ میں ریڈک کو وہاں لانا پسند کروں گا۔ کیتھرین 36 گھنٹوں کے عرصے میں 4 بال کٹوانے کی پوری کوشش کر رہی ہے تاکہ ریڈک کے بال اوہے کو بنوایا جا سکے۔ اس سے اپنے بال کاٹنا مشکل ہے، اس لیے مجھے کئی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن اب وہ واقعی خوبصورت لگ رہا ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھا کام کیا، میں واقعی متاثر ہوں، لیکن اب جانتے ہیں میں نے صرف سوچا ٹھیک ہے رک، میں داڑھی کاٹ سکتا تھا، وہ اپنے بال اوہے کو کاٹ سکتا تھا، وہ اسے کیتھرین کی پلیٹ سے ہٹا۔ اور تو آپ اپنے لڑکے کے بال کٹوانے کا کام کہاں سے کرواتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ کو صرف اس سے پوچھنا ہوگا کیونکہ وہ نہیں جاتا ہے جہاں میں نے اسے قائم کیا تھا، اور یہ کیسا تھا، اور یہ جیسے یہ ایک تفریحی دن تھا جو ہم مہمانوں کے ایک گروپ کے ساتھ گزار رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں اور بہت سی دوسری مثالیں تھیں جن میں داخل ہو سکتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ضروری ہے۔ نہیں، تو میں اس کے ساتھ کہاں جانا چاہتا تھا؟ بات یہ تھی کہ بیوی اب غصے میں ہے، لہذا شوہر ہر طرح کی پیش رفت کر رہا تھا، اور اب جب وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو آخر کار ہمیں بیوی سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور وہ غصے میں ہے۔ اس کہانی کو بیان کرنے کا یہی مقصد تھا۔ جی ہاں، اور بات یہ ہے، اب بات یہ ہے، وہ ہمارے ساتھ دوستی کرنے میں بہت واضح طور پر دلچسپی رکھتے تھے، اور ہم واقعی ان میں سے ہر ایک کو پسند کرتے تھے، لہٰذا ہم نے سوچا کہ یہ بہت اچھا ہے۔ جیسے جی ہاں، چلو یہ کر، چلو باہر آئیے خاندانوں کو ایک ساتھ لائیں، اور بچے ساتھ مل رہے ہیں، اور ہم ساتھ مل رہے ہیں، اور یہ حیرت انگیز ہے، لیکن بہت زیادہ حقارت ہے، اور اگر آپ ابھی تک نہیں جانتے ہیں تو حقارت ہے۔ طلاق کے سب سے بڑے اشارے میں سے ایک، اور قیامت کے 4 گھر سواروں میں سے ایک۔ ہاں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی آگ پر جلتی رہے، آگ پر رہے اور زمین پر جلتی رہے، تو آپ حقارت میں سوار ہوتے رہیں گے۔ اب یہ ہمیں کس طرح متاثر؟ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، میں اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، وہ کام جاری نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ کرنے میں خوش ہے، وہ زیادہ پریشان ہو رہا ہے، وہ لادیدی کی طرح ہے، اور خدا اسے اتنا اچھا آدمی عطا کرے، لیکن وہ اپنی شادی کو ترجیح نہیں دے رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی چیز اسے اتنی حقارت کا باعث بنا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت واضح طور پر شادی کو ترجیح دینے کی کوشش کرتی ہے، اور انفرادی طور پر مجھ سے رابطہ کرتی ہے تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ کیا مجھے لگتا ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہے، اور واقعی شادی کو آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ ابھی تک آپ کو یہ نہیں بتایا کہ جب ہم موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کیوں نہیں وقت گزاریں گے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ہم آپ کو باقی سب کچھ بتانے جا رہے ہیں تو ہم وہ جوڑے تھے کہ جب ہمیں یہ سارے مسائل درپیش ہوتے تو ہم باہر جاتے اور دوستوں اور دیگر جوڑوں کے ساتھ تقریبات منعقد کرتے، اور میں اکثر اوقات یہ یاد نہیں رکھتا تھا کہ یہ کون سا واقعہ تھا، لیکن ہم نے اس وقت کے بارے میں بات کی جب میں پارٹی میں جاتا تھا اور میں بوتل کرتا تھا۔ چیزیں اوپر ہیں، اور جب میں اس محفوظ جگہ پر پہنچا اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ پارٹی کی تو میں نے ایک مکمل نفسیاتی مریض کی طرح چھوڑ دیا۔ ہاں، عوامی سطح پر لڑنا، ہاں، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، چاہے آپ گھر پر ہوں یا آپ باہر ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں، لیکن جب آپ کے آس پاس دوست ہوتے ہیں، اگر آپ کتا اور شکایت کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ آپ کے دوستوں کے لیے منفی ہوگا، لہٰذا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم وہ جوڑے تھے جو پارٹیوں میں مدعو ہونا بند کر دیتے تھے کیونکہ ایک بڑی لڑائی میں بدل جاتا تھا۔ لوگ رک، ہمارے پاس سب سے شاندار ہوا کرتا تھا اور اب ہم سے واپس حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک ترکی بناتے ہیں جو گرتا ہے، جیسے آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے صرف ہڈیوں کو باہر نکالا اور لوگ آنا نہیں چاہتے تھے۔
हम इन बड़े इज्तिमाआत से हटकर यहाँ तक चले गए कि हर कोई कहाँ जाएगा, और हकीकत में सच कहा जाए तो अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं, मुझे नहीं मालूम, वो शायद अपने खानदानों के साथ मसरूफ है। जैसा कि हमने सिर्फ इसका जवाब पेश किया, लेकिन ये वाकई हम थे, क्योंकि हम वो जोड़े थे, ठीक है। और अगर हम बाल कटवाने के बारे में भी नहीं पूछ सकते हैं और ये कहाँ किया जा रहा है, तो आप हमारे साथ वक्त क्यों नहीं गुजार सकते, क्योंकि हम वाकई अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं चाहते। और मुझे लगता है कि ये लोगों को सुनने के लिए वाकई एक ताकतवर सबक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे हमें अपने खानदान के साथ लागू करना था, ठीक है। खानदान आप में से बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, आप जिम्मेदारी महसूस करते हैं। अगर आप मेरी तरह हैं तो आपने सुना है कि खून पानी से ज्यादा गाढ़ा है। अगर आप वाकई गोद लिए गए खानदान से मेरे जैसे हैं, लेकिन आप इस जुर्म और इस शर्म को तकरीबन महसूस करते हैं और माफ़ करने, छोड़ने, बढ़ने की इस नाअहली को महसूस करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में रखने के पाबंद महसूस करते हैं। एक और वर्जन दोस्त होंगे जिन्हें अब बहुत अरसे से जानते हैं, जो शायद आपके साथी को कबूल नहीं करते हैं, लेकिन शायद वो पूरी कहानी नहीं जानते हैं। इस तरह बहुत सारे अवामिल हैं। जी हाँ, तमाम मुख्तलिफ किस्म के हालात हैं जहाँ आप अपनी तवानाई उन लोगों को दे सकते हैं जिनको आपको अपनी तवानाई नहीं देना चाहिए। और जब इस जुड़े की बात आती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक बार फिर दोनों बहुत खूबसूरत लोग, बहुत खूबसूरत खानदान। मैं वाकई उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बदल सकती हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर उन्हें मदद नहीं मिलेगी तो हम किसी का फैसला नहीं करते। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बदतरीन मुकदमात की मदद करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं कि मेरे पास ये बात है कि अगर हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर हम आपकी मदद नहीं कर सकते तो ये मायूस कुन है, जैसे तलाक के वकील को कॉल करे। लेकिन ये आप जानते हैं कि मैं वहाँ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। हमें वो तमाम केस मिलते हैं जो वो आपको बताते हैं। थेरापिस्ट आपको बताते हैं कि आपको सिर्फ छोड़, लिहाजा हम इन मामलात में मदद करते हैं। लिहाजा हम इस जुड़े का फैसला नहीं कर रहे हैं। मसला ये है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, और उसका मतलब हमारे साथ काम करना नहीं, हाँ, उसका मतलब सिर्फ ये है कि आगे, अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो आप जाएंगे। केस के पास इसे पेश करने का बहुत अच्छा तरीका था, क्योंकि इसने इस आदमी से बात की और उसने कहा आप नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने अपनी शादी में इतनी मेहनत की है कि आपके साथ इस ज़वाल पजीर सफर पर नहीं जा सकता। और हो सकता है कि ऐसा ना हो कि मर्द नीचे की तरफ घूम रहा हो, लेकिन अगर हम जुड़े के साथ घूमते हैं तो हम पहले ही जान चुके हैं कि औरत एक मुख्तलिफ शख्स है जब वो गुस्से में होती है और उसका शौहर वहाँ होता है। अगर उसका शौहर वहाँ नहीं है, वो हैरत अंगेज है, वो हैरत अंगेज है। ये मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है, क्योंकि हकारत की तवानाई चूसने वाली परत नहीं है। लिहाजा मैं सिर्फ एक बार फिर इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लोगों के आसपास नहीं होंगे जो जहरीले हैं। हम ऐसे लोगों के आसपास नहीं रहेंगे जिनको मसाइल हैं। ये नहीं है कि आपको सिर्फ आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा और फिर हमारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें यह देखने की ज़रूरत है कि अगर आपने हमें अपनी शादी के हिस्से में आने दिया है तो आप मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हमें इस हकीकत से आगाह करते हैं कि आपको मदद की ज़रूरत है, लेकिन आप हमारी मदद कबूल नहीं करेंगे, आप किसी भी वसाइल को सुना नहीं चाहते हैं, आप ऐसा नहीं करते हैं, आप सिर्फ ये जाहिर करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन आप फिर भी एक जोड़े का रिश्ता रखना चाहते हैं। इसने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा कि हम ऐसे जोड़े के साथ इस जोड़े का काम नहीं करेंगे जो जोड़े नहीं बनना चाहते। बीवी जोड़े बनना चाहती है, शादी करना चाहती है। शौहर, मुझे यकीन है कि वो शादी करना चाहता है, लेकिन वो हर चीज को कालीन के नीचे झाड़ना चाहता है और ये जाहिर करना। जी हाँ, जैसे, और मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं अब लड़कियों को अपना काम करने देने की कोशिश कर रहा था और मैं काम कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो रहा जिसमें इसने मुझे दाखिल होने की इजाजत नहीं दी है। और ये वो चीज़ है, अब जानते हैं, आप में से किसी भी एक के लिए जो आपकी शादी में तब्दीली लाना चाहता है, फिर इसे हमारे साथ होने की ज़रूरत नहीं है। हम दरअसल तलाक में खलल डालने के लिए अपने मकासद नहीं कर सकते हैं। ये 30 साल का हदफ है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अहद बस्तगी, एहतराम, मोहब्बत और एहतराम की मामूल की ज़िंदगी मालूम हो। अब जानते हैं, हम अकेले ये नहीं कर सकते। तो एक बार फिर, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हों, जरूरी नहीं कि ये हमारा हो, लेकिन हम आपको जमूद में रहने के काबिल नहीं बनाएंगे। बिल्कुल इसी के खिलाफ हम खड़े हैं कि कालीन के नीचे चीज़ों को साफ करना और आपकी तवानाई को गलत जगहों पर खर्च करने की इजाज़त देना। लिहाजा ये जानते हुए कि अगर आप हमें अपने छोटे से राज से आगाह करते हैं कि आपकी शादी जिदोजहद कर रही है, तो आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि हम आपके तर्ज अमल को काबिल नहीं बनाएंगे। हम हुदूद मुकर्रर करते हैं क्योंकि हम आपको तब्दीली लाने की तरगीब देना चाहते हैं। तो उसकी पूरी वजह ये थी कि हम आपके साथ वक्त नहीं गुजार सकते क्योंकि आप बड़े लोग हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि हम आपको सजा देने नहीं, और ये इसलिए नहीं है कि हम कारोबार। इसकी लफ्जी वजह यह है कि हमने अपनी ज़िंदगी में किसी भी मनफी रवैये की हौसला अफजाई करने के लिए बहुत सख्त मेहनत की है, ठीक है। लिहाजा अगर हम एक अच्छा वक्त गुजारने जा रहे हैं तो हमें इस काबिल होने की ज़रूरत है कि आप किसके साथ अपने अर्द गिर्द हैं, और मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। लिहाजा मैं आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए अमली इक़दामात देना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं सिर्फ ये चाहता हूँ,
ये कुछ एक साथ में कहो मैंने मंसूबा बंदी की है जहां हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि सही थेरापिस्ट कोच कोर्स मेंटोर का इंतखाब कैसे किया जाए, चाहे आपको जो भी जरूरत हो, चाहे वो सही लोगों के साथ अपने अर्द गिर्द ही क्यों ना हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं आज यहाँ उसका इहाता करूंगा। चलो उसे एक सेकंड के लिए शादी से दूर कर देते हैं। अगर आप कारोबार के साथ अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने वालिदैन की बात क्यों सुन रहे हैं जो आपसे कहते हैं नहीं अपनी नौकरी पर जाओ, आप ये नहीं कर सकते। इसकी एक अच्छी मिसाल आपकी जिंदगी में सिर्फ लोग होंगे। लोग मुझसे कह रहे हैं कि जब हमने अपना जिम खो दिया तो नौकरी हासिल करो। कोविड से पहले हमारे पास 7 हिस्सों का जिम था, हमने इसे कोविड के दौरान खो दिया और लोगों का ख्याल था कि आपको बर्फबारी करने की जरूरत है, आपको होम डिपो में काम करने की जरूरत है। मैंने कहा ये मेरी जिंदगी को तब्दील नहीं करे और इसलिए मैंने इसके बारे में उनसे बात करना बंद कर दिया। ठीक है, अब वो मेरे पड़ोसी हैं, लिहाजा मैंने उनसे बात करना बंद नहीं किया, लेकिन मुझे उनके साथ वक्त गुजारने और उसके बारे में बातचीत करने की जरूरत नहीं थी। मैं किसी ऐसे शख्स से बात क्यों करूंगा जो मुझे रोक रहा है। देखो अब हम कहाँ हैं, मंजर पर नजर डाल, आप नहीं देख सकते हैं लेकिन वहाँ एक खूबसूरत झील का एक बड़ा नजारा है। हम एक पहाड़ की चोटी पर हैं, शहर की तरह, जैसे आपको वो करने की जरूरत नहीं है जो आपके ख्याल में आपको करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में उन लोगों को रखने के पाबंद हैं, चाहे वो इस जोड़े जैसे न लोग हों जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो लोग हों जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, चाहे वो लोग हों जिन्होंने परवरिश की है आप, चाहे वो लोग हों जो आपके ख्याल में सबसे बड़े ज़हीन तरीन हैं। अगर उनके पास वो नहीं है जो आप चाहते हैं, अगर वो तवानाई या मशवरा लाते हैं जो आपको अपनी मर्जी से ले जाता है, उन्हें छोड़ दें, उन्हें छोड़ दें, उन्हें छोड़ दें। आपकी इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी अपने आप पर एक जिम्मेदारी है, आपकी अपने साथी के लिए जिम्मेदारी है। जी हाँ, बिल्कुल। और आप जानते हैं ऐसे लोगों का होना अच्छा है जहां आप रहना चाहते हैं, तो जिन लोगों के साथ आप जिदोजहद कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं कि वो कहाँ हैं और आप कहते हैं मैं ये चाहता हूँ, और ये आपको अपने आप को तरगीब देने में मदद, ये आपको वहां पहुंचने में मदद करता है जहां आप होना चाहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं इन लोगों का होना अच्छा है। और इस दूसरे जोड़े के हवाले से ताल्लुकात की तरफ, ऐसे लोगों का होना भी अच्छा है जिनको मदद की जरूरत है। लेकिन जब किसी को मदद की जरूरत होती है और वो मदद हासिल नहीं करना चाहता है तो कारोबार के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। ये वही है जो वो कहने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई आपको रोक रहा है, अगर कोई आपके साथ बढ़ना नहीं चाहता है, तो वो आपका एंकर होगा। हम कभी भी आपके बूस्टर के बारे में बात नहीं करते हैं। जी हाँ, लेकिन चलो एक सेकंड के लिए शादी के साथ इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इस बयान को सुनने जा रहे हैं और आप सोचेंगे जी हाँ मैं वाहिद हूँ, मुझे ये तमाम मनफी बातें अपने साथी से मिलती हैं। जी हाँ, लेकिन ये पूरी चीज आपकी जिम्मेदारी लेने के बारे में है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, ताकि आप मनफी तौर पर मुतासिर ना हो। अगर आप चाहें तो अपने शरीक हयात पर उसका इतलाक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीजों को याद रख सकते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, हमारे बुनियादी उसूल, हम क्या सिखाते हैं, तो अपने मनफियत को भी मुमकिन बनाया। आप झंडे लहराने में अहम किरदार अदा करते थे, आप एक ऐसे शख्स थे जो इसमें मुलविस थे, लिहाजा इससे अलग हो जाओ। इस मुस्तकबिल के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं। मिसाल के तौर पर क़यादत करके अपने साथी को बोर्ड में शामिल करें। आप रोल मॉडल कहना पसंद करते हैं, मुझे क़यादत या असर और रसूख कहना पसंद है। बात यह है कि अगर आप इन बुरी चीजों पर असरअंदाज हो सकते हैं जो आपको ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो मुझे भी उनसे छुटकारा हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये उनके साथ भी ऐसा ही है। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप जिस समत में जाना चाहते हैं, आप मिलकर क्या बना सकते थे। अब इसकी तामीर शुरू करें, अब जानते हैं। हाँ, और एक आखिरी बात, तो इस जोड़े के साथ मुझे लगता है कि हमने आज इस जोड़े के बारे में बहुत बात की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने उन लोगों से ताल्लुकात मुनक़ते नहीं किए हैं, मैंने इसके साथ ताल्लुकात उस्तवार किए हैं, और इसलिए हम अब भी उम्मीद और दुआ कर रहे हैं कि वो मिलकर आगे बढ़ सकेंगे। वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वो आगे बढ़ने के काबिल नहीं है क्योंकि वो इससे पीछे थामे हुए है। मैं उसके साथ ताल्लुकात खत्म नहीं, मैं अब भी इस पर असरअंदाज हो, वो अब भी मेरी जिंदगी को देख सकती है और देख सकती है कि हम किस तरह बातचीत कर रहे हैं, और फिर वो अपने शौहर को मुतासिर कर सकती है। वो अब भी एक रिश्ता रख सकता है। चलो एक सेकंड के लिए इसके बारे में बात करते हैं। और चूंकि हमारे प्रोग्राम अलग अलग चलते हैं, ठीक है, और हम यकीन रखते हैं कि जो भी सुन रहा है वो इसमें है, ठीक है, तो फिर वो आपके प्रोग्राम में शामिल होने के काबिल क्यों नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं क्या सोचता हूं, लेकिन मैं आपके नुक्ता नजर को सुनना पसंद करूंगा और फिर मैं अपना नुक्ता, जैसे आप ये क्यों कहेंगे कि आप उसे अंदर नहीं। ठीक है, मैं जानता हूँ क्यों, लेकिन मुझे वाकई नहीं लगता कि मुझे इंटरनेट पर यह कहना चाहिए। ठीक, मैं इसे अपने तरीके से कहूंगा, और वो ये है कि ये सिर्फ इतना है कि इसने शुरू किया और वो रुक गया और छोड़ दिया, लिहाजा इसके लिए आगे बढ़ना बहुत हौसला अफजा नहीं है। और ये सबसे बड़ा मसला है जो मेरे ख्याल में हमने पूरा किया है। वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, वो हरकत करना शुरू कर देते हैं, और फिर शायद उन्हें वो नताइज नजर नहीं आते जो वो चाहते हैं। शायद वो अभी तक अपने जज्बात पर काबू पाना नहीं जानती है और वो अपना जहन खो देती है। मुझे वाकई परवाह, वो माजी को बहुत ज्यादा उजागर करती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह जो भी हो, वो आरामदेह और मुतमईन हो जाता है क्योंकि उसके पास काम के साथ बहुत कुछ है, जो मेरे ख्याल में इसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। ये वो शख्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर भी ये इसकी जिम्मेदारी है क्योंकि इसने शुरू किया और ये रुक गया। लिहाजा अगर वो मजीद चाहती है तो मैं इस तासुर में हूं, ठीक है, शायद वो, क्यों वो मजीद नहीं चाहता। क्या ये आपके लिए काम करता है? नहीं, क्योंकि मेरा पुख्ता यकीन है कि जिन औरतों के शौहर इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह उन्हें काम करने की ज़रूरत है, आप अपने शौहर पर असरअंदाज हो सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं इसके साथ ताल्लुकात उस्तवार कर रहा हूँ और वो मुझसे सीखना शुरू करने जा रही है, और वो शायद मेरे रास्ते में होगी और फिर वो अपने शौहर को मुतासिर करने के काबिल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या इसने अभी मेरे कोर्स के लिए साइन अप किया है? नहीं, वो नहीं है। ठीक है,
मेरा मतलब ये नहीं है। मैं वाकई मोहतात रहना चाहता हूँ क्योंकि हम वाकई सच्चे और ईमानदार हैं, और मुझे लगता है कि हम वाकई ये महसूस कर रहे हैं कि उन दोनों को कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आप अपनी शादी से बेहतरीन चाहते हैं तो अपने साथी का इंतजार न करें, वो करें जो हम आमतौर पर करते हैं। यानी अगर आप सुन रहे हैं, आप अंदर हैं, आप मजीद चाहते हैं, जाओ ये करें। मैं इस शख्स से कह रहा हूं कि अगर वो सुन रहा है, वो लड़की से कह रही है कि अगर वो सुन रही है। लिहाजा अगर आप आज सिर्फ सुन रहे हैं या आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो छलांग लगाएं और अपना काम करें। ठीक है, हम अगले एक पर बात करने जा रहे हैं कि आज शादी क्यों काम नहीं करती है। हम अगली बार आपसे मिलेंगे।